مغربی ہواؤں کے نئے سلسلے کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں اتوار کی رات سے منگل تک مزید بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان میں شدید بارش اور برف باری کا امکان۔ پی ڈی ایم اے کی تمام ضلعی انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ بالائی علاقوں میں چند مقامات پر شدید برف باری اور درجہ حرارت میں مزید کمی کی بھی پیش گوئی۔ ناران، کاغان، کالام اور چترال میں سڑکیں بند اور پھسلن کا خدشہ ہے۔ بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خطرہ۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں شدید برف باری، رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ آزاد کشمیر میں ضلع حویلی کی حدود میں ایمبولنس سمیت 25 کے قریب گاڑیاں پھنس گئیں۔ پاک فوج نے 32 مسافروں کو ریسکیو کر لیا۔ ایمبولنس میں موجود 2 میتیں بھی نکال لی گئیں۔ گاڑیوں میں 100 کے قریب افراد سوار تھے۔ ریسکیو آپریشن جاری۔ چترال میں برفانی تودہ گھر پر گر گیا، 9 افراد جاں بحق، 4 خواتین، 5 مرد شامل۔ وادی کاغان میں برف باری سے رابطہ سڑکیں بند، انتظامیہ نے سیاحوں کا داخلہ بند کر کے بالاکوٹ میں روک لیا۔ دیر بالا، کمراٹ، لواری ٹنل، باجوڑ میں برف باری سے راستے بند ہو گئے۔ مالاکنڈ میں کئی سال بعد برف باری، چلاس اور اپر کوہستان میں برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ قراقرم مختلف مقامات پر بند۔ استور کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع۔ ایبٹ آباد روڈ پر کمرے سے 3 نوجوانوں کی لاشیں ملی ہیں۔ ورثا کے مطابق جنریٹر کی زہریلی گیس بھر جانے سے موت واقع ہوئی۔ پاک فوج کی بلوچستان کے علاقے جوب میں امدادی کارروائیاں، پھنسی گاڑیوں کو نکالنے کا عمل جاری۔ مری میں برفباری کا سلسلہ رک گیا، موسم صاف ہو گیا۔ مری کے راستے جلد کھلنے کا امکان۔ برفباری کے باعث متعدد رابطہ سڑکیں ڈھک گئیں۔ مری میں مزید گاڑیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ ضلع انتظامیہ ہائی الرٹ۔ جھیکا گلی سے ملحقہ MIT روڈ کلیئر کر کے کھول دیا گیا۔ ترجمان گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ گلیات میں کسی سیاح کے پھنسنے یا نقصان کی کوئی اطلاع نہیں۔ وادی نیلم، سدھنوتی، باغ، ہٹیاں بالا، 8 مقام، اپر نیلم سمیت آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ گاڑیوں، درختوں، ہر چیز کو برف نے ڈھک دیا۔ برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ سے اہم شاہراہیں بند۔ بجلی کا نظام درہم برہم۔ متعدد علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے بجلی کی فراہمی معطل، پولز گر گئے، بجلی کی تاریں ٹوٹ گئیں۔ برف باری کے باعث بحالی میں مشکلات۔ مظفر آباد میں کئی سالوں کے بعد برف باری ہوئی۔ وادی نیلم میں شدید برف باری سے 3 مکانات گر گئے۔ اتوار اور پیر کو بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کا امکان۔ 26 جنوری کو بالائی سندھ میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مجموعی طور پر کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ جناح ٹرمینل اور اطراف کے علاقے سب سے سرد رہے۔ جناح ٹرمینل پر کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہا۔ کراچی کے سانحہ گل پلازہ میں اب تک 71 لاشیں اور انسانی باقیات لائی گئی ہیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق کا کہنا ہے کہ 20 افراد کی شناخت کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ لاشیں جل جانے کی وجہ سے DNA کا عمل پیچیدہ ہے۔ DC ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کے مطابق گل پلازہ کو 90% تک کلیئر کر دیا گیا ہے۔ 10 سے 11 افراد مسنگ ہیں، تلاش جاری ہے۔ ملبے سے 4 DVR ملے ہیں جن کی مدد سے سانحے کی وجوہات جاننے میں اہم شواہد ملنے کا امکان ہے۔ گل پلازہ سے ملبہ اٹھانے کے دوران 1.5 کلو سونا بھی ملا جسے دکان مالک کے حوالے کر دیا گیا۔ تہہ خانے میں دکان سے 1 لاکھ روپے سے زائد رقم برآمد، رقم مالک کے حوالے۔ گل پلازہ سانحے کی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پلازہ کی زمین KMC کی ملکیت تھی۔ 1883 میں یہ جگہ ٹرام سروس کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کو 99 سال کی لیز پر دی گئی تھی۔ 1983 میں یہ لیز ختم ہونے سے 1 ماہ پہلے جینکا نامی گروپ نے یہ زمین خرید لی۔ اس وقت کراچی کے میئر جماعت اسلامی کے عبدالستار افغانی تھے۔ نئی لیز لیے بغیر گل پلازہ کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ 3 روپے فی گز کے حساب سے اس زمین کی لیز MQM کے میئر فاروق ستار کے دور میں دی گئی۔ اس نئی لیز پر فاروق ستار کے دستخط ہیں۔ گل پلازہ کے اضافی فلور کو 2003 میں جماعت اسلامی کے میئر نعمت اللہ خان کے دور میں ریگولرائز کیا گیا۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت حکومت کی معاشی اصلاحات کی معترف۔
डेवॉस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। शहबाज शरीफ जब किसी काम को करने की ठान लें तो फिर उसे मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से इस्लाहात का नफाज कर रही है। हुकूमती इक़दामात के मुस्बत समरात मौसूल होने लग गए हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने अफगानिस्तान में बरतानिया समेत नेटो के किरदार पर सदर ट्रंप के बयान को ख़तरनाक और तौहीन आमेज़ करार दे दिया। माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, अगर मैंने ऐसा बयान दिया होता तो यकीनन माफ़ी मांगता। 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर अमरीका का साथ देते हुए जंग के दौरान 457 बरतानवी फ़ौजी हलाक हुए थे। सदर ट्रंप ने दावा किया था कि नेटो फ़ौजी अफगानिस्तान में जंग के दौरान फ्रंट लाइन से दूर रहे। बरतानवी वज़ीर ने सदर ट्रंप के बयान को मुज़ाहिका खेज़ करार दे दिया। कंजर्वेटिव लीडर कैमी बेडनोक ने भी बयान को फजूल बकवास ठहराया। अमरीका में मुक़ीम बरतानिया के शहज़ादा हैरी भी बोल पड़े। कहा, अफगानिस्तान में दी गई नेटो अफवाज की कुर्बानियों का एहतराम किया जाना चाहिए। बोले, मैंने भी अफगानिस्तान में फ़ौजी खिदमात सर अंजाम दी, दोस्त बनाए, दोस्तों को खोया भी। माँ बाप ने अपने बेटों और बेटियों को दफन किया, बच्चे वालिदैन के बगैर रह गए। अमरीका ने ट्रंप के नेटो से मुताल्लिक़ बयान पर बरतानवी तनकीद मुस्तरद कर दी। वाइट हाउस ने कहा, ट्रंप दुरुस्त कहते हैं, नेटो के लिए अमरीका ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। अमरीका ने नेटो के लिए दीगर तमाम ममालिक से ज़्यादा किरदार अदा किया। अमरीका की सालसी में अबूधाबी में यूक्रेन रूस मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म। मुज़ाकरात की तफसीलात जारी नहीं की गई। यूक्रेन रूस मुज़ाकरात का आखिरी दौर आज फिर होगा। यूएई का आलमी तनाज़ात के हल पर जोर। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का यूक्रेन के बहरान के हल की हिमायत का ऐलान। रूस यूक्रेन जंग फरवरी 2022 से जारी है। अरब इमारात की सालसी से रूस और यूक्रेन के 4641 फ़ौजी कैदी रिहा हो चुके। मैंने अजहर भाई साहब को 1 मिनट के लिए देना था, अब नहीं दूंगा बिकॉज आप इनकी बात नहीं सुन रहे तो फिर इनकी कैसे सुनने दूंगा? मैं नहीं दूंगा। अगर आप बात नहीं सुनेंगे, जवाब सुनिए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलेंगे तो उनको बोलने देंगे। हौसला कीजिए जी। जी हम भी मुसलमान, आप हमसे बढ़ के नहीं, हम आप जितने मुसलमान हैं। सुनिए, आप अपनी बात सुनिए, बात सुनिए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। हुकूमत का गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का दिफा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, हमें कोई बुज़दिली और गफलत का ताना ना दे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुल्की सलामती पर किसी से दर्स लेने की मोहताज नहीं है। गजा अमन बोर्ड में शमूलियत फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम को रुकवाने के लिए की। पाकिस्तान अमन बोर्ड का हिस्सा नहीं बनता तो अपोजिशन कहती कि पाकिस्तान तन्हा रह गया है। अपोजिशन का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एहतजाज। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, जो काम नेतन्याहू ना कर सका वो अब अमन बोर्ड के नाम पर शुरू हुआ। हम इत्तफाक़ राय के बगैर अमन बोर्ड का हिस्सा बन गए। हमें नहीं पता अमन बोर्ड के निकात क्या हैं। लाहौर में निजी कॉलेज के मगवी CEO की रिहाई से मुताल्लिक़ नए इंकशाफात सामने आए हैं। मगवी के मुताबिक मुल्ज़िमान ने इस शर्त पर उन्हें रिहा किया कि वो CCD को कुछ नहीं बताएंगे। अगवाकारों ने यह भी कहा कि तावान ना दें बल्कि हमसे भी पैसे ले जाएं। अगवाकारों ने बस पर बिठाकर किराया भी खुद अदा किया। CCD हुकाम का कहना है कि मुल्ज़िमान के करीब पहुंच चुके हैं, उन्हें जल्द पकड़ लेंगे। जौहर टाउन में निजी कॉलेज के CEO आबिद वज़ीर को बुध के रोज़ 16 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया गया था। हैदराबाद के करीब महरान हाईवे पर कार और ट्रक की टक्कर। 8 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। जाँ बहक अफराद में 2 मर्द, 1 खातून और 5 बच्चे शामिल। लांडी कराची फ्यूचर मोड़ के करीब ट्रेलर की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बीवी बच्चों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कानून मंजूर। बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना और बीवी को मर्जी के बगैर घर में दीगर अफराद के साथ रखना भी काबिल सज़ा जुर्म करार। कानून का इतलाक़ वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर होगा। कानून में बीवी, बच्चों या घर में रहने वाले दीगर अफराद को गाली देना, जज्बाती या नफसियाती तौर पर परेशान करना भी जुर्म होगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जिनसी इस्तेहसाल के साथ माशी इस्तेहसाल भी शामिल है। 3 साल तक की सज़ा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आयद किया जा सकेगा। जुर्माना अदा ना करने पर मज़ीद 6 माह की कैद होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ इतक इज़्ज़त के दावे पर समाअत आज होगी। अदालत ने पैमरा के गवाहान को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर जिरा मुकम्मल हो चुकी। हाई कोर्ट के बाहर झगड़ा केस में गिरफ्तार ईमान मज़ारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स केस पर समाअत आज होगी। गुज़िश्ता रोज़ मुल्ज़िमान और वकील सफ़ाई अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने कहा अगर आज मुल्ज़िमान पेश ना हुए तो जिरा का हक़ ख़त्म हो जाएगा। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने जुमे को हड़ताल की। लाहौर में बसंत की इजाज़त के बाद पतंग और डोर की तैयारी का अमल एक बार फिर रिवायती अंदाज में जारी। कारीगर सुबह से शाम तक पतंगे और डोर तैयार करने में मसरूफ़ हैं। कारीगरों का कहना है कि तैयारी के तमाम मराहिल में हुकूमती SOPs पर अमल पैरा है। हर पतंग पर QR कोड लगाया जा रहा है। डोर की तैयारी में मंजूर शुदा नंबर्स के धागे लगा रहे हैं। ईरान अमरीका कशीदगी। बरतानिया ने कतर में 4 टाइफून लड़ाकर तैयारे तैनात कर दिए। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक तैयारों को दिफाई मकसद के तहत भेजा गया है। इक़दाम ऐसे वक्त सामने आया है जब सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अमरीका मशरिक़ वस्ता की जानिब एक बड़ा बेड़ा रवाना कर रहा है। उधर अमरीका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा ख़जाना ने ईरानी हुकूमत के 8 इदारों और 9 जहाज़ों पर पाबंदियाँ लगा दी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि अमरीकी फ़ौजी नक़्ल हरकत के पेश नज़र ईरान में हाई अलर्ट है। किसी भी किस्म के हमले को मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज़ में टीम का हिस्सा नहीं। 3 मैचेस की सीरीज़ 29 जनवरी से लाहौर में शुरू होगी। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा थिंक फेस्ट शुरू हो गया। पहले रोज़ पाकिस्तान, अमरीका और चीन के दरमियान मौजू पर नशिस्त हुई। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर का कहना था चीन हमारा स्ट्रेटेजिक और काबिल एतमाद दोस्त है। अमरीका अपने पुराने उसूल तोड़ रहा है। ट्रंप की दूसरी टर्म अहमकाना है। माहौलियात से मुताल्लिक़ सेशन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का कहना था कि ग़िज़ाई क़िल्लत और सैलाब मुस्तक़बिल के ख़तरात हैं। माहौल का हमारी ज़िंदगी पर बराह रास्त असर है। रंगों और ब्रश के ज़रिए माशरती हक़ाइक़ पेश करने वाले आर्ट की दुनिया के मंटो इक़बाल हुसैन गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए। इक़बाल हुसैन ने आलमी मयार के मुसव्विराना फ़नपारे तख्लीक़ किए। इक़बाल हुसैन का फ़न सिर्फ तस्वीरों तक महदूद नहीं बल्कि शऊर का आईना बन गया। LLB ग्रेजुएट ने सारा दिन तेरे गंदे कपड़े धोने के अलावा और झाड़ू पोछा लगाने के अलावा और क्या ही करना होता है? भाई मैं भी इंजीनियर हूँ, 2 टके की नौकरी कर रहा हूँ जो कोई भी ऐसे पास कर सकता है। अगर उस वीडियो में तू ना होता, मुझे अकेली की होती वो वीडियो, तब तो तू कभी मुझसे शादी नहीं करता। साथ लड़ दो। और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की चौथी किस्त ने माशरती रवैयों के दोहरे मयार को बेनकाब कर दिया। किस्त में बैरिस्टर सबन पाकीज़ा के वालिद से पूछती हैं कि वीडियो के मामले पर कानूनी रास्ता क्यों इख्तियार नहीं किया, तो उनका जवाब खामोशी में था। जब पाकीज़ा के वालिद से पूछा गया कि पैका एक्ट के तनाजुर में केस फाइल क्यों नहीं करते, तो उल्टा पाकीज़ा को ही मुरद इल्ज़ाम ठहरा दिया कि पाकीज़ा घर से बाहर ही क्यों गई थी। क्या हिरासानी का शिकार पाकीज़ा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो TV पर।